बताओ सुपरवाइज क्या होता है? व्हेन देयर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड आउटपुट वेरिएबल्स बोथ आर अवेलेबल। अनसुपरवाइज में आउटपुट वेरिएबल्स अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, सो डिसीजन ट्री बिलोंग्स टू द सुपरवाइज्ड लर्निंग family, right? That can be used to solve the regression and classification problem. Classification problem is solved by the categorical variables, and regression is solved when you have the continuous variable. ठीक है, the goal of using a decision tree is to create a training model that can use to predict the class or value of the target variable. ठीक है, means you have to predict output the target variable by the simple decision rules, right? That is taken from the prior data, that is taken from the training data, right? So in decision trees, for predicting a class label, we will start from the root node, right? We will start from the root node of a tree. We compare the values of the root attribute with the records attribute. On the basis of comparison, we follow the branch. We will create the branch of root node. ठीक है, branch बनाएंगे, then corresponding to that value and jump to the next node. ठीक है, ब्रांच के बाद हम नेक्स्ट नोड में जंप करेंगे। ठीक है, टू टाइप से डिसीजन ट्रीज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टारगेट वेरिएबल। फर्स्ट इज कैटेगोरिकल वेरिएबल डिसीजन ट्री, जो आपका क्या कैटेगरीज को यूज करेगा, एंड सेकंड इज कंटिन्यूअस वेरिएबल डिसीजन ट्री, जो कि न्यूमेरिक एट्रीब्यूट को यूज करेगा। ठीक है, so there are some important terminology related to decision tree. First one is root node. It represents the entire population or sample, and this further get divided into two or more homogeneous sets. ठीक है, तो रूट नोड को हम क्या डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, टू और मोर होमोजेनियस सेट्स। स्प्लिटिंग इज, व्हाट इज स्प्लिटिंग? स्प्लिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए नोड इनटू टू और मोर सब नोड्स। ठीक है, ट्री में तो आपको पता ही ऐसे ही बनता है ना। डिसीजन नोड, when a subnode splits into further subnode, then this is called a decision node. ठीक है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, फर्स्ट वन इज रूट नोड, देन वी आर स्प्लिटिंग दिस रूट नोड इनटू टू डिसीजन नोड्स। ठीक है, then this decision node is further splitted into terminal node and one more decision node. So if we found the terminal node, then we got the target value. ठीक है, this is the last node, that is the terminal node. ठीक है, and this decision node if further categorized into terminal node, this A is the parent node of B and C, so this is called branch or subtree. This complete, right? ये वाला area, decision node, terminal node and terminal node. ठीक है, then leaf and terminal node. Nodes do not split is called leaf or terminal node. For example this, इसका splitting नहीं हो रहा ना terminal node का, जबकि डिसीजन नोड को आप फर्दर स्प्लिट कर रहे हो कितने में, दो पार्ट्स में। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल नोड और लीफ नोड। ठीक है, देन फिफ्थ वन इज प्रूनिंग। व्हाट इज प्रूनिंग? व्हेन वी रिमूव सब नोड्स ऑफ ए डिसीजन नोड, ठीक है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रूनिंग। सो वी कैन से दैट दिस इज द अपोजिट ऑफ स्प्लिटिंग, मींस वी आर रिमूविंग सब नोड्स ऑफ ए डिसीजन node. Right? What is branch or subtree? A subsection of entire tree is called branch or subtree. For example, this ABC is a branch or subtree. ठीक है, then last one is parent and child node. A node which is divided into subnodes is called a parent node, or subnodes where subnodes are the child of parent nodes. जैसे हमने इसमें लिखा है कि A is the parent of B and C. ठीक है, ये आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा, है ना। Then there are multiple algorithms for making the decision tree. So the first one is ID3. ID3 is iterative dichotomizer 3. ठीक है, इसका नाम है ID3, that is iterative dichotomizer 3. One more algorithm is the C4.5. It is a successor of ID3. Then CART is classification and regression tree. Then CHAID, that is chi-square automatic interaction detection, perform multi-level splits when computing classification trees. Then one more decision tree algorithm is MARS, multivariate adaptive regression lines. ठीक है, तो आपके various algorithms use होते हैं for creating the decision trees. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ID3, that is iterative dichotomizer 3.
which was developed by Rose Quinlan in 1986. So ID3 builds the decision tree using the greedy search approach. Okay, it is a top-down approach that is called a greedy search approach, right? Through the space of possible branches with no backtracking. There is no backtracking in the tree. ठीक है, वापस नहीं जाओगे आप क्या करोगे, टॉप से डाउन में ही जाओगे. ठीक है, a greedy algorithm, as the name says, it always make a choice that seems the best. Means we will choose the best thing from that greedy algorithm. ठीक है, for creating the decision tree. ठीक है, अभी एक न्यूमेरिकल आएगा और उसमें आप ज्यादा क्लियर हो जाओगे कि कैसे होता है. ठीक है, so what are the steps in ID3 algorithm? So first we will take the original set as a root node. ठीक है, on each iteration of algorithm it iterates through a very unused attribute of the set and we will calculate entropy and information gain. ठीक है, हमें देखेंगे what is entropy and what is information gain. ठीक है, क्या होता है ये आगे आ जाएगा ये. It then selects the attribute which has the smallest entropy and largest information gain. So we will select which is having the largest information gain. तो हम इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करने से पहले हमको एंट्रोपी कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, उससे क्या होगा, क्या बनेगा हमारा, वी विल डिसाइड द रूट नोड ऑफ ए डेटा सेट. ठीक है, हमारे पास एक डेटा सेट दिया होगा. ठीक है, जिसमें सेवरल एट्रीब्यूट्स होंगे. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होंगे एंड वी विल हैव टारगेट वेरिएबल्स आल्सो. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट इंफॉर्मेशन गेन. और इंफॉर्मेशन गेन कहां से कैलकुलेट होगा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन गेन. इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है कि कौन सा डेटा हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है. ठीक है, वो इंफॉर्मेशन गेन होता है डेटा सेट में. ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय इंफॉर्मेशन गेन. तो पहले हम इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे, देन इंफॉर्मेशन गेन कहां से कैलकुलेट होगा, एंट्रोपी से. ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन जिस एट्रीब्यूट का ज्यादा आया उसको हम क्या बना देंगे, रूट नोड. वी विल मेक द रूट नोड. ठीक है, देन सेट एस इज देन स्प्लिट बाय सेलेक्टेड एट्रीब्यूट टू प्रोड्यूस ए सबसेट. हाँ, एंट्रोपी भी बता रहा हूँ क्या है, सब चीज अभी आगे आ जाएगा. ठीक है, एंट्रोपी क्या है वो सब आ जाएगा. The algorithm continues to recur on each subset considering only attributes never selected before. ठीक है, जो एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिया उसको हम फिर बाद में सेलेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, वो एक बार सेलेक्ट हो गया तो हो गया, वो फिर ट्री में हम बाद में यूज नहीं करेंगे. ठीक, नाउ द फर्स्ट वन इज एंट्रोपी. ठीक है, एंट्रोपी मींस द मेजर ऑफ रैंडमनेस. जैसे आप सिक्के को उछालते हो, टॉस करते हो, तो टॉस में क्या होता है, टॉस इज ए रैंडम इवेंट. क्या आ सकता है आपका, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है. ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते हेड ही आएगा या टेल ही आएगा. तो इट इज अ रैंडमनेस. So entropy is a measure of randomness in the information being processed. ठीक है, so the higher the entropy, it is harder to draw any conclusion from that information. अगर जिसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी तो हम उससे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं. ठीक है, तो फ्लिपिंग ए कॉइन इज एग्जांपल ऑफ एन एक्शन दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट इज रैंडम. ठीक है, सो ID3 फॉलोज द रूल, ए ब्रांच विद एन एंट्रोपी ऑफ 0, अगर किसी ब्रांच की एंट्रोपी 0 आती है, इज ए लीफ नोड. मतलब लीफ नोड मतलब हमें क्या मिल गया, हमें टारगेट वेरिएबल मिल गया वहां पर. ठीक है, यस या नो मिल गया, लोन अप्रूव्ड और नॉट ये मिल गया, हमें ट्रू और फॉल्स ये मिल गया. ठीक है, सो द ब्रांच विद एंट्रोपी मोर देन 0 नीड्स द फर्दर स्प्लिटिंग. ठीक है, अगर किसी की एंट्रोपी 0 से ज्यादा आती है तो हम उसे अगेन स्प्लिट करेंगे इन सब नोड्स. ठीक है, उसके और सब नोड्स बन जाएंगे. ठीक है, so there's a formula for entropy. If we have a set with k different values, we can calculate the entropy as follows. Entropy of a set is I set, that is minus summation of p value I into log p value I base 2. ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, अभी ये न्यूमेरिकल आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा आपको ये फॉर्मूला कहां पर लगेगा. ठीक है, अभी आप जस्ट इसको ऐसे ही देख लो आपका क्या है. ठीक है, एंट्रोपी कैसे निकलेगा. ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपके पास ये सेट दिया हुआ है R इक्वल्स टू A B B B B B. ठीक है, सो देयर आर कितने इसमें आपके वैल्यूज हैं, 8 वैल्यूज हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द एंट्रोपी बाय माइनस
व्हाट इज 3? 3 इज द अकरेंस ऑफ ए, ठीक है। 3/8 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, दैट इज 8, ठीक है। देन log 3/8 base 2, then plus 5/8 log 5/8 base log 2, ठीक है। सो फर्स्ट वाली क्या है आपकी ए वैल्यूज है और सेकंड वाली क्या है आपकी बी वैल्यूज है, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना ये। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए की निकाल लिखे हमने 3/8, ठीक है। बी की क्या निकाल लिखे हमने 5/8। सो एंट्रोपी हमारी अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी एंट्रोपी निकल जाएगी एट्रीब्यूट की, ठीक है। ये सेट दे रखा हमें, ठीक। Then next is information gain. Information gain is the entropy calculated before and entropy calculated after. Means the entropy of entire data set minus entropy of each attribute of the data set, ठीक है। So information gain क्या बताता है हमें कि कौन सा एट्रीब्यूट हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, that is called the information gain. So we can have the highest information gain and smallest entropy, ठीक है। तो हम इसमें एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उससे ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपी एंड हाउ टू कैलकुलेट इंफॉर्मेशन गेन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आपको पूछना है इसमें? एनीवन ऑफ यू? नहीं तो हम आगे चल रहे हैं फिर। चलो ओके, हम आगे चलते हैं, ठीक है। सो we will use ID3 algorithm, that is iterative क्या है dichotomizer 3 algorithm, ठीक है, for creating the decision tree. So this is our data set, ठीक है। इसको बना लो आप कॉपी में अगर बनाना चाहते हो तो। हाँ कैलकुलेट करोगे ना, अभी कैलकुलेशन करोगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो क्रिएट दिस डेटा सेट, पहले से देख लो। सो देयर आर 4 एट्रीब्यूट्स and 14 examples in this data set, ठीक है। So we have to create a decision tree of this data set, ठीक है। So this is the example of play tennis, ठीक है। So there are 2 target variables, either no or yes, ठीक है। लास्ट में क्या आपका either no और yes. So there are 4 attributes, that is outlook, एक एट्रीब्यूट आपका आउटलुक है, सेकेंड एट्रीब्यूट इज टेम्परेचर, ठीक है, थर्ड एट्रीब्यूट इज ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ एट्रीब्यूट इज विंड, ठीक है। एंड व्हाट इज योर टारगेट एट्रीब्यूट और टारगेट वेरिएबल? प्ले टेनिस, ठीक है। एंड देयर आर 14 एग्जांपल्स फ्रॉम D1 to D14, ठीक है। मींस if outlook is sunny, temperature is hot, humidity is high, wind is weak, so play tennis yes or no, ठीक है। ये आपका क्या है, एक एग्जांपल है। ऐसे ही आपका सेकंड एग्जांपल है, थर्ड फोर्थ अप टू 14।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स बन रहा है आपका, ये बना रहे हो? यस सर। ठीक है। बन गया? बन गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। बन गया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब एनी आइडिया इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद क्या करेंगे? बनाया नहीं? इसके बाद तो हम ये कहेंगे सर कि ऐसे या नो नो और यस यस जो है सर उसमें टोटल नंबर है सर। देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द रूट नोड। ठीक है, रूट नोड हमारा क्या होगा? रूट नोड क्या क्या हो सकता है? या तो आपका आउटलुक होगा, ठीक है, या टेम्परेचर होगा, या ह्यूमिडिटी होगा, या विंड होगा। ठीक है, बट वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? क्या होगा? 4 एट्रीब्यूट है हमारे पास ना। हाउ टू आइडेंटिफाई द रूट नोड? मैंने बताया था रूट नोड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय कैलकुलेटिंग द इंफॉर्मेशन गेन। हाँ, जिसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? रूट नोड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन गेन को कैलकुलेट करने के लिए हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एंट्रोपी इज द रेंडमनेस ऑफ एनी डेटा। ठीक है, सो इसको आगे देखते हैं हम। So for creating decision tree with ID3 algorithm, that is iterative dichotomizer 3, we need to understand which attribute is given maximum information out of the given attribute. So we have 4 attributes. So which attribute is giving the maximum information? तो उसको हम root node बना देंगे. So out of 4 attributes, we need to calculate information gain of every attribute. ठीक है, सब एट्रीब्यूट्स का आपको इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, so the attribute having maximum information gain will be considered as the root node. Then we will start building our tree. ठीक है, हम ट्री बनाना फिर हम स्टार्ट कर देंगे जैसी हमारी इंफॉर्मेशन गेन आई। सो देखो, फर्स्ट वी विल टेक द एट्रीब्यूट ऑफ आउटलुक। देखो हमारे पास टेबल क्या है,
ये टेबल हमारे पास, ये डेटा सेट है. सो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज आउटलुक. ठीक है, आउटलुक की अब वैल्यूज क्या क्या है? आउटलुक इज आइदर सनी, ओवरकास्ट और रेन, है ना. सो हमने यहां पर इसे ऐसे डिफाइन कर दिया. एट्रीब्यूट इज आउटलुक. ठीक है, वैल्यूज ऑफ आउटलुक इज आइदर सनी, overcast and rain. So first we will calculate the information gain of, for calculating the information gain of every attribute we need to first calculate the entropy of whole data set. So first we will calculate the entropy of whole data set and then we will calculate the entropy of individual attribute. मतलब whole data set means the complete data set, individual attribute means we will calculate the attribute of outlook, temperature, ह्यूमिडिटी एंड विंड. ठीक है, इन सबका होगा. सो फॉर द एंट्रोपी ऑफ एंटायर डेटा सेट, देखो हमने यहां लिख रखा है S इक्वल्स टू 9 प्लस एंड 5 माइनस. व्हाट इज दिस? देखो 9, हाँ, देयर आर 5 नेगेटिव एग्जांपल्स एंड 9 पॉजिटिव एग्जांपल्स. इफ यू सी दिस टेबल, देयर आर नो, कितने हैं देखो, 1 2 3 4 एंड 5 नो है ना इंटायर डेटा सेट में. सो देयर आर 5 नेगेटिव एग्जांपल्स. यस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है, 9 यस है तो 9 पॉजिटिव एग्जांपल्स हो गए. सो फॉर कैलकुलेटिंग द एंट्रोपी ऑफ इंटायर डेटा सेट, फॉर्मूला इज एंट्रोपी ऑफ S इक्वल्स टू माइनस 9 by 14. 9 by 14 means proportion of positive examples. ठीक है, that is 9 पॉजिटिव है एंड टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स कितने हैं आपके? 14 है. टेबल में देखोगे ना, D1 to D14. log 9 by 14 base 2. ठीक है, माइनस 5 by 14 is the proportion of negative examples. ठीक है, log 5 by 14 base 2. ठीक है, इसको जरा कैलकुलेट करो, इतना ही आ रहा है. log 2 कैसे निकालो? log base 2 9 by 14 कैसे निकालोगे और log base 2 5 by 14 कैसे निकालोगे? मोबाइल से कर लो या कैलकुलेटर है उससे कर लो आप. ठीक है, तो अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे, सेम फॉर्मूला है जो हमने इसमें देखा था. ठीक है, सेम फॉर्मूला है. एंट्रोपी इज इक्वल्स टू नेगेटिव I इक्वल्स टू 1 to K P वैल्यू ऑफ I log base 2 P वैल्यू ऑफ I. ठीक है, वही फॉर्मूला है ना आपका, इसको आप यहां रिलेट कर लो. ठीक है, सेम फॉर्मूला है. मोबाइल से तो सर बेस कैसे लेंगे मोबाइल में सर? मोबाइल में बेस आता तो है. नहीं तो कैलकुलेटर का यूज करोगे, एग्जाम में आएगा तो ये कैलकुलेटर यूज करोगे? हाँ, आपके मोबाइल में 2 टाइप के कैलकुलेटर आते हैं ना, एक सिंपल आता है, एक एडवांस आता है ना. हाँ, साइंटिफिक एडवांस आता है. ऑनलाइन स्टूडेंट से 9 प्लस और 5 माइनस कैसा है पता चल गया ना? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो अब पहले आप इंटायर डेटा सेट देखोगे. ठीक है, उसमें आप देखोगे कितने यस है कितने नो है. अगर यस है तो पॉजिटिव एग्जांपल्स हो गए और माइनस है तो नेगेटिव एग्जांपल्स हो गए. ठीक है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ इंटायर डेटा सेट. आप एक कैलकुलेट कर लो, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे. फिर तो कैलकुलेट कर ही लोगे आप. साइंटिफिक नहीं है मोबाइल से, इसके में नहीं.
यही आ रहा है आंसर? यस सर, ये Yes, sir. 0.94 यही आ रहा है ना? yes, ठीक है, तो ये हो गया आपका एंट्रोपी ऑफ एंटायर डेटा सेट. सो वी विल यूज दिस एंट्रोपी ऑफ एंटायर डेटा सेट फॉर कैलकुलेटिंग द इंफॉर्मेशन गेन लेटर. ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ सनी, ओवरकास्ट एंड रेन. ठीक है, आपके पास क्या था, एंटायर डेटा सेट का तो कर लिया आपने. ठीक है, देन यू हैव टू कैलकुलेट फॉर सनी, ओवरकास्ट एंड रेन. इसमें भी है ना आपके वैल्यूज, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन. ये आपके किसके एट्रीब्यूट्स हैं, आउटलुक के. वो कैसे करेंगे आप? देखो आप सनी कितने बार है आपका, देखोगे ना, इस टेबल में जाओगे, सनी देखो कितना, 1 2 3 4 5 बार है. ठीक है, और कितने बार उसके पॉजिटिव वैल्यूज हैं और कितने बार नेगेटिव वैल्यूज हैं, वो देखो. सनी की देखो यहां पर नो नो मतलब नेगेटिव, देन सनी की नो. ठीक है, देन हाँ 2 बार यस है और 3 बार नो है. 2 बार यस है तो मतलब 2 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव. Then you have to calculate the entropy of S Sunny, that is minus 2/5. 5 is total number of attributes of Sunny. ठीक है, 2 is positive. ठीक है, 2/5 and 3/5 is for negative. तो ये कैलकुलेट करके आपका क्या आ जाएगा, 0.971 आ जाएगा. ठीक है, अब एक बार वेरीफाई कर लेना. ठीक, देन यू हैव टू कैलकुलेट फॉर ओवरकास्ट. ठीक है, सो एस ओवरकास्ट इक्वल्स टू, ओवरकास्ट कितने हैं देखो आप, ओवरकास्ट 1 2 3 4 और सब की वैल्यू क्या है आपकी, यस है. ओवरकास्ट में आपकी सबकी वैल्यूज क्या है, यस है. तो 4 पॉजिटिव एंड 0 नेगेटिव. सो एंट्रोपी ऑफ ओवरकास्ट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला. देखो कहीं भी आपका अगर कोई भी वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है. ठीक है, इफ वी हैव ओनली पॉजिटिव और ओनली नेगेटिव वैल्यूज, देन उसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो आपका 0 ही आएगा. ठीक है, अगर कोई भी आपका 0 पॉजिटिव या 0 नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो ऑलवेज 0 ही आएगी वहां पर. ठीक है, तो इफ वी हैव ओनली पॉजिटिव और ओनली नेगेटिव एग्जांपल्स, देन द वैल्यू इज ऑलवेज 0. Now next is if we have equal number of positive and negative examples, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1. मान लिया आपका यहाँ पर 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव होता, या 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव होता. ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आती है आपकी, 1. नाउ कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ रेन. एंट्रोपी ऑफ रेन इज, अब रेन में देखोगे तो आप क्या है, रेन कितने बार है, 1 2 3 4 5. ठीक है, कितने यस हैं देखो रेन में, ठीक है, तो 3 पॉजिटिव्स एंड 2 नेगेटिव्स. ठीक है, सो यू हैव टू कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ रेन ऑल्सो. ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ, -3/5 दैट इज फॉर पॉजिटिव. ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ पॉजिटिव एंड प्रपोर्शन ऑफ नेगेटिव. ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0.971. ठीक है, देन इसके बाद क्या करोगे आप क्या इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करोगे. हाउ टू कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन गेन, अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो हमने क्या बताया था इसमें, इंफॉर्मेशन गेन इज कैलकुलेटेड बाय एंट्रोपी बिफोर, जो आपकी कंप्लीट डेटा सेट की एंट्रोपी है, माइनस एंट्रोपी आफ्टर, जो ऑल एट्रीब्यूट्स की एंट्रोपी आई है. ठीक है, सो इट इज कैलकुलेटेड बाय, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ एस मींस एंट्रोपी ऑफ कंप्लीट डेटा सेट, दैट इज ये आई है आपकी 0.94. ठीक है, तो यहां पर हम इसे पुट कर दिया. ठीक है, 0.94. देन समेशन ऑफ, ठीक है, एस वी डिवाइडेड बाय एस, एंट्रोपी ऑफ एस वी, दैट इज यहां पर हम क्या ले लेंगे, देखो एस वी इज द कंप्लीट positives and negatives, that is 5 आ रहा है आपका.
एंड डिवाइडेड बाय s इज द कंप्लीट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दैट इज 14। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों इंक्लूड हो गए आपके। ठीक हो गया। यहां पर दे रखा है जहां पर v बिलोंग्स टू सनी, ओवरकास्ट एंड रेन, तो तीनों के लिए बनेगा आपका। ठीक है, तो सनी के लिए क्या बना आपका 5/14 एंट्रोपी ऑफ एस सनी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 4/14, 4 मतलब 4 पॉजिटिव है 0 निगेटिव है, तो 4 ही हो गया ना यहाँ पर, 4/14 एंट्रोपी ऑफ एस ओवरकास्ट। ठीक है, माइनस 5/14 दैट इज +3, 3 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है। ठीक है, दैट इज 5/14 एंट्रोपी ऑफ एस रेन। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दोगे 0.94 इज द कंप्लीट एंट्रोपी ऑफ द डेटा सेट, 5/14 0.971 is the entropy of sunny, 4/14 0 is the entropy of overcast, minus 5/14 0.971 is the entropy of rain। तो आपकी क्या आ जाएगा, ये इंफॉर्मेशन गेन आ जाएगा। ठीक है, दैट इज 0.2464। ठीक है, नेक्स्ट इज कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ एट्रीब्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये अब मैं नहीं बता रहा हूं, ये आप खुद करोगे। ठीक है, टेम्परेचर, और अभी मेरे को आंसर बताओगे इसका। ठीक है, टेम्परेचर का, फिर उसके अलग अलग आप किसका करोगे, आप टेम्परेचर का, टेम्परेचर करोगे। टेम्परेचर की आपने कंप्लीट एंट्रोपी निकाली, उसके बाद क्या करोगे, हॉट, माइल्ड और कूल का निकालोगे। ठीक है, इसको करो आप। आंसर मेरे को बताओ। कौन सा स्लाइड, क्यों देखना पड़ेगा? ये देखो, पहले ऐसे बताओ, S इक्वल्स टू, पहले एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू टेम्परेचर लिखो, इसके हिसाब से करो उसे। अब टेम्परेचर का बनाओ, मैंने वाली स्लाइड खोल दी है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो टेम्परेचर के लिए बनाओ। यहां पर एट्रीब्यूट क्या आ जाएगा आपका, टेम्परेचर, TEMP, वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल्स टू हॉट, माइल्ड एंड कूल, यही है ना। डेटा सेट में देख लेना एक बार, तभी मैंने कहा था डेटा सेट बना लो एक बार। पॉइंट 94 ही आ रही है, एंट्रोपी तो सेम ही आएगी। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एंट्रोपी क्या है इंटायर डेटा सेट की? सर सेम ही आएगी वो। सेम ही आएगी, क्योंकि आप कंप्लीट डेटा सेट ले रहे हो, है ना, तो इसको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप किसकी क्या करोगे, कैलकुलेट फॉर पर्टिकुलर वो सर, हॉट, माइल्ड, हॉट, माइल्ड। अलग अलग एट्रीब्यूट्स की, हॉट, माइल्ड एंड कूल, इनकी करो अब एंट्रोपी कैलकुलेट। ठीक है, ये फ्रेम है आपके पास, इसके हिसाब से आप हॉट, माइल्ड एंड कूल की एंट्रोपी कैलकुलेट कर लो, है ना। फॉर्मूला यहाँ पर है। देखो इसको करो, फिर हम थोड़ा आगे का नहीं करेंगे, आगे आप खुद देख लोगे, है ना। फिर हम ट्री में चले जाएंगे, ट्री का हमने रूट नोड कैसे बनाया, पहले इसको कैलकुलेट करो तो मतलब आपको आ जाएगा समझ में। सर सेम में 1 होगा ना?
क्या चीज? सेम पॉजिटिव और नेगेटिव में 1 होगा ना वैल्यू? पॉजिटिव निगेटिव में हाँ 1 होगा। पहली वाली में आपका 1 ही आ रहा होगा, +2 और -2 आ रहा है ना? हाँ, तो +2 -2 इज 1। तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप बेफालतू में टाइम अपना वो करोगे उसमें। सेकंड और थर्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू कैलकुलेट करो, उनकी वैल्यूज आएंगी। ऐसे लॉग के फॉर्म में बता दें कि कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं बता दूंगा, चलो लॉग लेकिन कैलकुलेट कर लेना वहां पर। सर हमारे एग्जाम ऑफलाइन मोड में भी आता है कि ऑनलाइन मोड? नो नोटिस। आपको ऐसा कुछ गेस नहीं? मेरे कुछ पता नहीं। टेबल या आंसर? लो टेबल ही है। टेबल तो बनाई होगी आपने। टेबल तभी मैंने कहा था पहले आप टेबल बना लो। कंप्लीट नहीं करी। आया किसी का आंसर आया? ऑनलाइन? सर पॉइंट हाँ 0 to 9। हाँ 0 to 8 9 इज द आंसर, ठीक है। सो इधर देखो, आप पहले एस हॉट की करेंगे जिसमें 2 पॉजिटिव्स एंड 2 निगेटिव्स हैं, तो आपका 1 ही आएगा, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। माइल्ड में क्या है, आपके 4 पॉजिटिव्स एंड 2 निगेटिव्स हैं। अगर आप टेबल देखोगे वहां से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करोगे एंट्रोपी ऑफ पॉजिटिव्स, ठीक है, प्रोपोर्शन एंड निगेटिव प्रोपोर्शन, ठीक है। देखो डिवाइड का टोटल है यहाँ पर 3 और 1 का टोटल है, ठीक है, 4। सो प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स। सो फर्स्ट वैल्यू आ रही है 0.9183, यही आ रही है आपकी भी, ठीक है। सेकेंड वैल्यू इज आपकी कूल की आ रही है 8113, ठीक है। देन यू हैव टू कैलकुलेट इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन इज द एंट्रोपी ऑफ कंप्लीट डेटा सेट माइनस एंट्रोपी ऑफ इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। लेकिन यहां पर आपका एक और जुड़ जाता है SV/S, दैट इज द कंप्लीट पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स ऑफ हॉट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है, 14। ऐसी इसके लिए 4 2 6 डिवाइडेड बाय 14, ऐसी 3 और 1 4 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। सो दिस इज द एंट्रोपी ऑफ टेम्परेचर, ठीक है।
आपने आउटलुक की निकाल ली, टेम्परेचर की निकाल ली, देन यू हैव टू कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, हमारा एक और एट्रीब्यूट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या है, हाई नॉर्मल दो ही है। ठीक है, तो हम जाते हैं ह्यूमिडिटी में। ठीक है, ह्यूमिडिटी में इंटायर डेटा सेट की एंट्रोपी सेम आएगी। ठीक है, इसको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल देखो एंट्रोपी इसमें क्या है, आपके हाई में 3 पॉजिटिव्स एंड 4 नेगेटिव्स हैं, अगर टेबल में देखोगे आप। ठीक है, सो एंट्रोपी ऑफ एस हाई इज proportion of positives and proportion of negatives, इसमें डाल दोगे आप फॉर्मूला में, 0.9852 आंसर आ रहा है। ठीक है, देन नॉर्मल के लिए 6 पॉजिटिव्स एंड 1 नेगेटिव है। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ एस नॉर्मल इज proportion of positives and proportion of negatives। ठीक है, 6/6 क्या है, पॉजिटिव, 7 कंप्लीट हो गया टोटल, 6 + 1। ठीक है, तो इसका आंसर आया 0.5916। ठीक है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन इज 0.1516। नाउ यू हैव लास्ट एट्रीब्यूट दैट इज विंड। विंड के भी दो आपके वैल्यूज हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। तो एंट्रोपी ऑफ एंटायर डेटा सेट इज सेम 0.94। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग अपीयर्स 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव, सो entropy of strong is पॉजिटिव प्रोपोर्शन एंड नेगेटिव प्रोपोर्शन दैट इज 1, क्योंकि आपके सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव्स हैं, सेम नंबर ऑफ नेगेटिव है, आप तो सीधे आप 1 लिख सकते हो वहां पर। ठीक है, वीक के लिए क्या है, 6 पॉजिटिव्स एंड 2 नेगेटिव्स, तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जब डिफर होंगी वैल्यूज। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे, पॉजिटिव प्रोपोर्शन एंड नेगेटिव प्रोपोर्शन दैट इज 8113 आ रहा है। देन यू हैव टू फाइंड द इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन इज 0.0478। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, सब इंफॉर्मेशन गेन्स आ गए हैं। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन गेन ऑफ आउटलुक इज 0.2464, इंफॉर्मेशन गेन ऑफ टेम्परेचर इज 0.0289, इंफॉर्मेशन गेन ऑफ ह्यूमिडिटी इज 0.1516, इंफॉर्मेशन गेन ऑफ विंड इज 0.0478। सो हियर इंफॉर्मेशन गेन ऑफ आउटलुक इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम गेन है तो वी विल कंसीडर इट एज ए रूट नोड। ठीक है, अगर रूट नोड आपका आउटलुक है तो उसके ब्रांचेस क्या होंगे, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन, बिकॉज देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ आउटलुक, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन। ठीक है, आउटलुक हमारा रूट नोड है, जो कि हमने कहां से फाइंड कर लिया, इंफॉर्मेशन गेन से, जिसकी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन है दैट इज अवर रूट नोड। देन उसके ब्रांचेस क्या होंगे, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन, बिकॉज की वैल्यूज हैं वो। ठीक है, देन यू हैव टू क्रिएट द ट्री। ठीक है, रूट नोड इज आउटलुक, इसको जरा ध्यान से देख लेना। ठीक है, हैविंग 14 एग्जांपल्स, ये आपने ऊपर दे दिए, D1 to D14। ठीक है, विद 9 पॉजिटिव्स एंड 5 नेगेटिव्स, ये आपका पहले आया हुआ था। देन देयर आर 3 ब्रांचेस, सनी, overcast and rain. Sunny appears in D1, D2, D8, D9, D11। अगर आप टेबल देखोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, सनी कहां पर है, D1, D2, D8, D9 एंड D11। सो आपका ये ट्री में आ गया। ठीक है, अब D1, D2, D8, D9, D11 में कितने पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है, अब ओवरकास्ट में देखो D3, D7, D12 एंड D13। ठीक है, जिसमें 4 पॉजिटिव्स हैं एंड 0 नेगेटिव है। ठीक है, अब यहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फर्दर आपको इसको सब ब्रांच में डिवाइड नहीं करना है या सब नोड्स में डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका 4 पॉजिटिव्स हैं और 0 नेगेटिव है, मींस आपकी नो वैल्यू तो है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब आपका यहीं पर ही आपका टारगेट लीफ नोड आ गया है। ठीक है, टारगेट नोड आ गया है, दैट इज यस, means if outlook is overcast then play tennis। ठीक है, ये आपका टारगेट एट्रीब्यूट इसके लिए आ गया है, तो इसको फर्दर आपको इस नोड को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए ना यहां तक। देन फॉर रेन,
रेन, हाँ, रेन अपीयर्स इन D4, D5, D6, D10 एंड D14। अगर वहां देखोगे आप टेबल में तो रेन यहाँ पर है आपका, ठीक है। एंड देयर आर 3 पॉजिटिव्स एंड 2 नेगेटिव्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पता नहीं है ना कि किसको हमने मतलब प्ले टेनिस वाला यस किसको करना है, ठीक है। देन फर्दर वी विल मेक ए सब ब्रांच, ठीक है। यहाँ पर हमें वैल्यूज पता नहीं है यस है या नो है, ठीक है। यस और नो का हमें ऐसा पता नहीं है क्योंकि 2 यस है और 3 नो है। यहाँ पर भी 3 यस है और 2 नो है, ठीक है। देन इसके बाद क्या करोगे आप, अब हम लेफ्ट साइड वाली ब्रांच में देखेंगे, डेट इज सनी। अब हम कहा जाएंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले जाएंगे सनी में, ठीक है। अब हम देखेंगे सनी कहां कहां पर है टेबल में, D1, D2, D8, D9 एंड D11, ठीक है। दैट इज आउटलुक इज सनी। अब हम सनी के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सनी के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करा, मतलब कंप्लीट डेटा सेट के लिए। वहां पर हमने क्या लिया था, पहले आउटलुक के लिए लिया था, फिर हमने टेम्परेचर के लिए, फिर ह्यूमिडिटी के लिए, फिर विंड के लिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करा है, सनी तो हमारा कंप्लीट ऐसे हमने डेटा सेट ले लिया है, ठीक है। कंप्लीट डेटा सेट का हमारा कितना आ रहा है वैल्यू, 0.97, ठीक है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए करेंगे, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज हॉट, माइल्ड और कूल, ठीक है। टेम्परेचर अगर हॉट है तो उसकी 0 पॉजिटिव्स एंड 2 नेगेटिव्स हैं। अब इस टेबल में देखना आप, ठीक है। इस टेबल में देखो हॉट कितने बार है, 1, 2, ठीक है। हमने कहां से निकाला, देखो ना ये वाली टेबल कहां से बनाई हमने, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी आइडिया ये टेबल कहां से बनाई है? ये हमने यहां से बनाई है ना सनी, हमने ये वाला लेफ्ट वाला हमने ब्रांच लिया है, उसके D1, D2, D8, D9 एंड D11 लिए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारी कोई वैल्यू आई नहीं है तो हमने ये वैल्यूज ले ली यहाँ पर, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी चीजें हमने ले ली, ठीक है। अब हम कंप्लीट सनी के लिए बनाएंगे तो कितने पॉजिटिव्स हैं, देखो आपके 2 पॉजिटिव्स हैं, 2 यस है, 2 यस है ना आपके पास, और 3 निगेटिव्स हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव ले लिए हैं। इस टेबल से देखोगे आप, अब वाली टेबल मत देखो, आप ये वाली टेबल देखो, ठीक है। इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करी, प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिव्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ नेगेटिव्स, ठीक है। देन अब हम इंडिविजुअल एट्रीब्यूट के लिए करेंगे, दैट इज फॉर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, ठीक है। अगर टेम्परेचर होगा तो उसकी वैल्यूज क्या होंगी, हॉट, माइल्ड एंड कूल। अब हॉट कितने बार है, देखो 1, 2, ठीक है। और दोनों बार क्या है, नो है, दोनों बार नो है, तो 0 पॉजिटिव्स एंड 2 नेगेटिव्स। सो हम इसको डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी 0 आ गया एक भी तो हम उसे डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब माइल्ड में देखोगे, माइल्ड कितने बार है, 2 बार है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको हम क्या कर सकते हैं 1, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है। कूल में क्या है आपका, देखो कूल हमारा एक ही बार है कूल एक ही बार, उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। सो एंट्रोपी ऑफ कूल इज 0.00, नेगेटिव कोई भी नहीं है तो 0 नेगेटिव है तो हम 0 लिखेंगे उसकी वैल्यू, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड द इंफॉर्मेशन गेन, दैट इज एंट्रोपी ऑफ प्रीवियस एंड एंट्रोपी ऑफ आफ्टर, ठीक है। दैट इज 2/5, ये यहां से आ जाएगा आपका 2, यहाँ पर भी 2 है, 2/5, और यहाँ पर 1 है, 1/5, और इनटू उसकी एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ दिस इज 0, जो यहां से आई है आपकी, एंट्रोपी ऑफ दिस इज 1, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ दिस इज कूल इज 0, ये वैल्यू आ गई। इन द सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट फॉर ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये कर लोगे ना आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब ह्यूमिडिटी के लिए करोगे, ठीक है। देन विंड के लिए करोगे, ह्यूमिडिटी मींस इसके लिए करोगे, देन विंड के लिए करोगे, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, ह्यूमिडिटी के लिए इंफॉर्मेशन गेन ये आ गया, ठीक है। विंड के लिए इंफॉर्मेशन गेन ये आ गया। देन यू हैव टू फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन, यू विल फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन गेन। यहां पर हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन किसका है, ह्यूमिडिटी का, ठीक है। सो यू हैव टू कंसिडर इट एज ए नोड, जैसे आपने रूट बनाया था, अब इसको नोड बनाओगे किसका, लेफ्ट हैंड साइड वाले का। अब यहां पर क्या आ जाएगा, ह्यूमिडिटी, इफ आउटलुक इज सनी एंड ह्यूमिडिटी इज जो भी होगा, ठीक है।
सो अब ये ट्री कैसे बन जाएगा आपका, ऐसे, समझ गए? इफ आउटलुक इज सनी, ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी के सब ब्रांचेस क्या होंगे, हाई और नॉर्मल। अगर आप इस टेबल में जाओगे, सब ब्रांचेस क्या है, ह्यूमिडिटी इज आइदर हाई और नॉर्मल। और हाई कितनी जगह देखो, D1 D2 D8 एंड नॉर्मल D9 एंड D11 में। अगर इस ट्री में देखोगे D1 D2 D8 D9 एंड D11। देखो अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो प्लेट एनिस इज नो, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी इज नॉर्मल, प्लेट एनिस इज यस, ठीक है। देन यू विल फाइंड द टारगेट एट्रीब्यूट हियर, ठीक है। मींस लीफ नोड आपका यहां पर मिल गया। आप इस यस और नो को फर्दर कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यस और नो के आगे कुछ है ही नहीं, है टारगेट वेरिएबल है आपका, ठीक है। इन द सेम वे यू हैव टू गो फॉर रेन। अब हमारा लेफ्ट साइड वाला पूरा हो गया ट्री, ठीक है। सेंटर वाला ओवरकास्ट वाला भी पूरा हो गया था, ये पहले ही हो गया था हमारा। अब कहाँ जाएंगे हम, राइट हैंड साइड वाले में जाएंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड वाला का हम क्या लेंगे, अब देखो इसमें क्या है, D4 D5 D6 D10 एंड D14। देन यू हैव टू क्रिएट ए सब डेटा सेट, D4 D5 D6 D10 एंड D14, ठीक है, फॉर रेन, ठीक है। जैसे वहां पर हमारा क्या था, वहां पर हमारा आउटलुक इज सनी था। अब हम क्या करेंगे, आउटलुक इज रेन, समझ गए ना। Then you have to calculate the entropy of entire data set, that is for rain. उसकी entropy कितनी आ रही, 0.97. Then you have to calculate the entropy of temperature, that is hot, mild and cool. इसका करोगे आप, ठीक है। Then for देखो इसमें एक चीज और है, अगर 0 पॉजिटिव एंड 0 नेगेटिव आए तब भी वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब इंडिविजुअल आपने हॉट, माइल्ड एंड कूल का करा, ठीक है। फिर उसके बाद आप इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करोगे इन द सेम फॉर्मूला। देन ह्यूमिडिटी का करोगे, ह्यूमिडिटी में हाई एंड नॉर्मल है। देन विंड का करोगे, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। देन यू विल फाइंड दिस वैल्यूज, ठीक है। इंफॉर्मेशन गेन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। देखो इसमें हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन किसका है, विंड। देन यू विल कंसिडर इट एज ए नोड ऑफ दिस ट्री, ठीक है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क जहां पर था वहां पर आपका विंड आ जाएगा। विंड की अब सब ब्रांचेस क्या है, आप टेबल में देखोगे विंड की सब ब्रांचेस है वीक एंड स्ट्रॉन्ग। कितने वीक हैं, 3 वीक हैं, 2 स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 3 वीक हैं और 2 स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इफ विंड इज स्ट्रॉन्ग देन प्लेट एनिस इज नो, इफ विंड इज वीक देन प्लेट एनिस इज यस। देन यू विल फाइंड द कंप्लीट decision tree on the basis of ID3 algorithm, ठीक है। एग्जाम में नहीं दूंगा इसे मैं, बहुत ज्यादा लंबा है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आया समझ में ये? यस सर। एग्जाम में नहीं दूंगा, जो बहुत ज्यादा लंबा है, आप बीच में फंस जाओगे, फिर पूरा टाइम खराब होता है ना। हाँ, तो इसमें ऐसा हो सकता है छोटा सा आ जाए एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए या इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करने के लिए, इतना लंबा नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो मतलब इतना पूरा आपको डिसीजन ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक डेफिनेशन के उस पे इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, उसके बेस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। वैसे दूंगा नहीं मैं इसमें कुछ भी, ठीक है, नहीं दूंगा। ठीक है, बीएससी सीएस स्टूडेंट्स आगे आपको समझ में, बीएससी सीएस 6th कौन कौन है? बीएससी सीएस 6th था, एक चले गया वो भी। बीएससी आईटी 4th? यस सर। आगे आपको समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, तो एग्जाम के लिए आप इसमें बेफिक्र हो, ये नहीं दूंगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये जस्ट आपको सिलेबस में था तो बताने के लिए है, ठीक। चलो हम यहीं पर इसको एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।